Um, Hello, friends. Before I start today's session, I would like to just put it out there that we are here to share the research and investigations of our guests today. These are true to the best of our guests' knowledge, but I request people not to judge or malign anyone's character based on a single standalone fact. We must not target or make personal attacks based on any expose. We are not here to pass judgment, but to ask for justice. So let's welcome our guest, Mr. Naseef Fahad. He is the editor in chief and CEO of AWN News Global. His team of investigative journalists has been on the case and they've been sharing their research and investigation with all of us. He is looking at this case through the lens of international media and brings a fresh perspective. So let's listen from him. And I would like to add that he will be talking in Hindi in respect of Sushant Singh Rajput and everyone who is in the fight, who is in the movement for justice. Welcome, Mr. Naseef Fahad. Thank you so much for joining us. Thank you very much. Thank you very much for calling me on your show. Yeah. I ask this to everyone. Why are you in this movement? Why are you in this movement for justice? Let me tell you first. मैं पहले बोलता हूँ आपको कि मैं थोड़ा बैकग्राउंड पे जाता हूँ केस के, ठीक है? It will take long, I guess, but I think it is fine for you. The thing is, after 14 June, the 14 June morning, everyone is calling it is a suicide. वो लोग बोल रहे थे कि ये suicide है. पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया 10 मिनट्स के अंदर ही डिक्लेयर कर दिया था और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स भी ये ब्रॉडकास्ट किया कि सुशांत सिंह राजपूत had committed suicide. तो उसके बाद से ये चल रहा था, लेकिन मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं और सोशल मीडिया में जो लोगों को लग रहा था कि क्यों बॉलीवुड से कोई कमेंट नहीं आ रहा है, कोई उसको मेडिफाइंग कर रहा है बोल के कि कि वो बायोपोलर थे, ये थे, वो थे, जो सच नहीं था, ठीक है? उसके बाद सोशल मीडिया में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ. उसके बाद उन लोगों को सुना रिपब्लिक चैनल ने, ठीक है? उन लोगों का जो आवाज़ है, जो वॉइस है, Republic has listened to them and started, broadcasting this news, and they have done a relentless, pursuing this case and investigating this case, and so many sting operations happened, and so many exposes were happened in this case. तो अभी मैं उन लोगों के लिए ही मैं ये बोल रहा हूँ कि वो लोग पहले मांग किया था कि अगर आपको मालूम है तो लवली कि वो लोग मांग किए थे कि इंटरनेशनल कवरेज भी इस पे जरूरी है, ठीक है ना? तो मेरा भी जो टीम है, मेरा जो कंपनी में काम करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इन यूएई, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम इंडिया, and they have requested me to कि we should take over this case because there are so many things are going wrong, and I checked them, I checked all the information, then मैंने उन लोगों को approval दे दिया कि yes, now you can carry on, and then right away I have sent my 12 man, the investigative journalist team, who is on ground right now in Mumbai, to investigate the case in a journalism way and dig out the thing what is actually happened to Sushant Singh Rajput and Disha Salian. So इसीलिए हम लोग आए हैं और सोशल मीडिया पे भी हम लोग फॉलो कर रहे थे, बहुत सारे लोग भी मांग कर रहे थे, और मेरे पास भी बहुत सारे इंडिया पे इंडियन लोग यूए में 28% इंडियन यहाँ पे रहते हैं, मेरे यहाँ पे रहते हैं, वो लोग भी पिटिशन दिया है, वो लोग भी सिग्नेचर किया है कि हम लोगों को टेलीकास्ट करना चाहिए. So after getting the government permission, we have started broadcasting. Yeah, thank you so much, and we are thankful that because you bring a fresh perspective, you bring the perspective of international media to this case. So tell me, so you say that you have your team of investigative journalists in Mumbai investigating the case. So when you find something, do you share it with the
CBI, the authorities? ये बोलना अभी सही नहीं होगा क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन पे हम कर सकते हैं, लेकिन यस सीबीआई हैज गॉट व्हाट दे नीडेड, ठीक है, वो हम लोग बोल चुके हैं कि सीबीआई हैज गॉट व्हाट दे नीडेड, दे हैव ऑलरेडी हैव गॉट ऑल द एविडेंसेस. Sure. So again, coming to the fact like how hard people were trying to push the suicide narrative, I see that November 15 you tweeted, have you all heard of anyone going to a party to commit suicide? CBI is a step closer to cracking the Disha SSR case. So would you like to comment on that? यस देखो, ये दिशा सालियान का जो केस है, मैंने पहले भी आप अगर मेरे वीडियो देख चुके हो, मैं वीडियो देख के ही आप शायद मुझे इनवाइट किया आपके चैनल पे, ठीक है ना? वहाँ पे मैंने बोल चुका था कि अगर दिशा सालियान का डेथ नहीं होता तो सुशांत का डेथ भी नहीं होता, सुशांत जिंदा होता, ठीक है. सो इट इज इंटरलिंक. बहुत पहले मैं 2 महीने पहले मैं वीडियो पे मैंने बोल चुका था, ये मेरे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे मैं बोल चुका था. और इसीलिए ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि जो लोग अभी भी बोल रहे हैं, उनका फैमिली भी बोल रहा है, शायद प्रेशराइज्ड है, ठीक है, बोल रहा है कि यू नो हम लोग कुछ नहीं जानते. तो इसीलिए ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है जो मैंने शेयर किया है ट्वीट पे कि कोई ये नो कि कौन सुसाइड करते हैं पार्टी में जाने के बाद. मैं पार्टी मूड में हूँ, मैं क्यों सुसाइड करूँगा, ठीक है ना? दैट इज द थिंग. So then if we come to this November 16, so in response to a video, I am not going to name the Twitter handle, you released a letter. And I mean, it's a whole letter. People can go ahead and read that letter on your Twitter handle. But you say, you address it to Smita Parekh and you say, can you please share what happened between June 8 and 13? And you also name Mrs. Rohini Iyer. Can you just comment on that? ये मैं बोला कि ये जो है हम लोगों को किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, वी शुड रेस्पेक्ट द वुमेन. मैंने पहले भी बोला था. लेकिन हम लोगों का जो ऑन इन्वेस्टिगेटिव टीम है, उन लोगों के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है. उसी हिसाब से यू नो मेरे पास भी, मैं अभी भी एक्सपोज करता हूँ तो मैं यू नो मैं वो लोग मैं डिफाइन करते हैं फेक न्यूज़ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है ना. मैं दुबई से हूँ. दुबई पे इंडियन लोग रहते नहीं है क्या? वो भी क्या दाऊद गैंग हो गया, ठीक है ना. तो ये जब वो लोग यू नो मेडिफाइंग करने स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग, मुझे पता चलता है क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजिकली हम लोग वेल कनेक्टेड है, ठीक है. हमारी टेक्निकल टीम भी यू नो वो लोग जानते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है. मैं अभी भी आपके सामने में बहुत सारे ग्रुप्स के नाम ले सकता हूँ जो सोशल मीडिया में है, ठीक है ना. टेलीग्राम पे है, व्हाट्सएप पे है, ट्विटर पे भी, मैं ट्विटर इनबॉक्स पे भी ग्रुप्स खुले हुए हैं, ठीक है ना. वो नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, वो भी हम लोग एक्सपोज कर दे सकते हैं. नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सब अगर करेंगे तो ये जो पहले से जो मुहिम स्टार्ट हुआ था सोशल मीडिया में, ठीक है, ये इन लोगों को मिसगाइड हो जाएंगे वो लोग, ठीक है. और ये जो मुहिम है ये स्टॉप हो जाएंगे, ये हम लोग नहीं चाहते. वी आर जस्ट पुटिंग द राइट फैक्ट इन फ्रंट ऑफ द पीपल हु आर रियली वांट गेट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत. So तुम लोगों को किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ. आई एम टेलिंग देम कि यूज योर ब्रेन and do the best you want. You can do your protest individually in the social media. There is no required for group, you know. There is no required for fund for protest. We have all the evidences. We can, if we expose them, that will be a massacre. We are not doing this. We are exposing those things which matters, which you know matters the case, which is delaying the investigation and making confusion between the CBI and CFSL team, ठीक है ना. वही फैक्ट हम लोग रख रहे हैं. Sure. So I would like to say like Mr. Fahad ये कह रहे हैं कि इनका गोल नहीं है कोई सनसनीखेज फैलाना या कुछ भी. वो अपने जो रिसर्च करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इनके टीम ऑफ जर्नलिस्ट, he just tries to put the relevant information in front of public and बाकी he also shares with the authority. I was going through all the tweets and all your
news releases. So way earlier you said this, that Indian media will be forced to stop talking about Sushant Singh Rajput case, and you also talked about the plan that Arnab Goswami, the Indian journalist, there's a plan for his assassination. I mean, देखो आप देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि मेरा जो ऑन ग्राउंड टीम है, इन्वेस्टिगेटिव टीम है, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट एंड वेरी एफिशिएंट, ठीक है। उन लोगों को सब कुछ पहले ही पता चल जाता है। आपका जो क्वेश्चन था कि मैंने बहुत पहले कैसे बोल दिया था कि यू नो कि इंडियन मीडिया विल बी फोर्स्ड टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट सुशांत सिंह राजपूत। अभी ये हो रहा है, देखो टीआरपी केस डाल दिया है, और सडनली एक चैनल जो आई शुड नॉट टेक द नेम, यू नो, वो yes. चैनल भी चेंज हो गया है, ठीक है ना। दे टू यू टर्न। तो ये हम लोगों को पहले ही पता चल चुका था कि क्या होगा। अर्नब के ऊपर भी क्या आ रहा है, ठीक है ना। हम लोग सबके ऊपर यू नो हम लोगों का नजर रहता है। हम लोगों का काम ये है इन्वेस्टिगेट करना कि अगले स्टेप में क्या होगा और किसके लिए हमको प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है ना। मैं ये समझता हूँ, देखो अर्नब सर ने जो किया, ठीक है, उनको मैंने बोला पूरे मेरे न्यूज चैनल पे, मेरे जो न्यूज चैनल है, पोर्टल है, वहाँ पे मैंने बोला ही शुड बी ट्रीटेड एज एन इंटरनेशनल नंबर 1 जर्नलिस्ट, नॉट इन इंडिया, ठीक है। वो हमारे लिए भी नंबर 1 जर्नलिस्ट है, जो रिलेंटलेस ऑपरेशन उसने चलाया और जो फैक्ट उन्होंने ले आया सामने। और उसके बाद यू नो मुझे सबको ही डाउट हो गया था कि वो मुंबई पे रजिस्टर्ड स्टूडियो से वो यू नो ये सब ऑपरेट कर रहे हैं और मुंबई पे रहते भी है, तो उनका जान को भी खतरा हो सकता है। तो वी स्टार्टेड आवर यू नो द एजेंट एंड द सोर्सेस, वी यूज देम एंड गेट द इंफॉर्मेशन। एंड अगर अब मुझे लगता है अगर मैं वो चीज़ यू नो पब्लिक नहीं करता, ठीक है, वो चीज़ मैं 23 अक्टूबर का अगर पब्लिक नहीं करता, तो ये चांस मिल जाता उन लोगों को कि एज अ यू नो एलिमिनेटिंग, क्योंकि मैं वहाँ पे लोगों का नाम ले लिया कि किस जेल में डालेंगे, कौन किससे प्लान किया है, ठीक है ना। तो इसीलिए शायद यू नो ये नहीं हो सका। और उसके बाद भी जिस दिन उन्होंने यू नो अरेस्ट हुआ, उनको अरेस्ट किया गया था इंडियन टाइम 6 o'clock या फिर 6:30 o'clock in the morning. Yes. And मैंने फ्लाई किया टू मुंबई इंडियन टाइम 7:30 अराउंड 8:30 आई गेस इंडियन टाइम। मैं मुंबई पे था 9 दिन, एंड मैं ट्वीट करता रहता था। मेरा जो न्यूज़ पार्टनर है, मेरा जो मीडिया पार्टनर्स है, रॉयटर्स है, बीबीसी है, सीएनएन है, अल जजीरा है, उन लोगों को मैं चिट्ठी लिखा, सुप्रीम कोर्ट को मैं चिट्ठी लिखा। अगर आपने मेरा ट्वीट को फॉलो किया है तो आपने देखा होगा शायद, ठीक है। हम लोगों ने ईमेल किया, हम लोगों ने यू नो हार्ड डॉक्यूमेंट हम लोग यू नो हैंड टू हैंड हम लोगों ने उन लोगों को दिया है कि इसको टेलीकास्ट करो। 2 घंटे बाद ही बीबीसी and CNN and also the New York Times, they started you know the broadcasting the news in their web portal. So ये भी मैंने शेयर किया था। So हमारे कुछ guests हैं, they are asking how Mr. Fahad knows about all this. So he as he mentioned earlier, he has a team of investigative journalists working in Mumbai also, and from abroad also doing investigations. So that is how he comes up with all his information. Thank you for watching and thank you for connecting everybody. So aapne since we are talking about Republic and Arnab Goswami, November 20th you tweeted about Ghanshyam Singh. He Yes. has been placed in Nasik jail because sab log keh rahe the ki his whereabouts are unknown like right now, but you tweeted like and you also say that he's under severe torture to reveal their sources and turn up Yes, witness yes. against Republic for the made up TRP Yes. scam. बिकॉज देखो ये मैंने कहा पब्लिश किया, ये ट्वीट मैंने कहा ट्वीट किया। मैंने देखा कि रिपब्लिक ने एक बहुत पेनफुल प्रेस रिलीज किया कि घनश्याम का कोई एड्रेस नहीं मिल रहा है, उसका लोकेशन नहीं मिल रहा है, वो लोग ट्रेस कर नहीं सकते, उसका फैमिली बहुत टेंस्ड है, वो कहाँ है, जिंदा है या मर गया है, ठीक है ना। तो उसी समय हम लोगों ने, हमारा जो सोर्सेस है, जो टीम है, उन लोगों को मैंने इन्फॉर्म किया कि पता लगाओ कि कहाँ है। तो उन लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन दिया और मैं ट्वीट कर दिया। उसके बाद देखो कि
रिपब्लिक ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, क्योंकि उन लोगों को भी मालूम पड़ गया शायद अभी मेरा जो बोलना था वो सही है, और उसके बाद ही वो लोग एक्शन लिया है। अभी तो गनसन सेफ है। Okay. We hope कि वो सेफ हो या this. यस, अभी So अभी रिपब्लिक का लीगल टीम काम कर रहे हैं उसको बाहर निकलने के लिए, शायद बाहर निकल भी जाए। yeah, we hope कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए, यस यस क्योंकि इतने सारे लोग जिनको अंदर होना चाहिए था वो बाहर हैं, और जिनको बाहर होना चाहिए था वो अंदर हैं। यस। तो आपने also you tweeted about search warrant to the Waterstone Resort, and is it like was the search warrant for NCB or was it for CBI, and were they able to do it? It was by CBI। ठीक है, मैं ट्वीट किया था कि दिल्ली से दो टीम जा रहे हैं पटना में। ठीक है, और सब लोग गेस कर रहे थे कि ये शायद 302 के लिए जा रहा है। तो अगर आपको मालूम है कि फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट राउंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, सीबीआई को वो वहाँ पे सर्च करने नहीं दिया गया वाटरस्टोन रिजोर्ट पे। मालूम है, न्यूज़ पे आया, आप सबको मालूम है, ठीक है ना। तो उसके लिए सेकंड राउंड इन्वेस्टिगेशन पे वो लोग वहाँ पे गए विद सर्च वारंट गॉट फ्रॉम पटना कोर्ट। ठीक है, एंड विद द सर्च वारंट वो लोग गए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो जो वाटरस्टोन रिजोर्ट है वहाँ पे गए। जाने के बाद वहाँ पे बहुत कुछ मिला है कि रिया कैसे रहते थे, सुशांत कहाँ पे रहते थे, सुशांत क्या करते थे, रिया क्या करते थे, सीसीटीवी फुटेजेस लिया है, और वहाँ पे बहुत कुछ लोग का आना जाना था। ठीक है, और उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज उन लोगों ने रिट्रीव नहीं, वो सीसीटीवी फुटेज ही था, और जो वहाँ पे जो अथॉरिटी था उनका जो स्टेटमेंट था उससे ड्रग ड्रग थिंग आया है कि यहाँ पे ड्रग पार्टी भी चल रहा था, वो या फिर जो भी हो कोई और चला रहा था। ठीक है, जब और सुजन के फैमिली के रिया के फैमिली भी बहुत दिन रह चुका था वहाँ पे। ठीक है, जब वो बाहर से लौटा था। ठीक है, घर पे नहीं गया, वो ही रिसोर्ट में रह रहा था सुजन के साथ, रिया और रिया का फैमिली, और उस समय बहुत लोग आए मिल चुके हैं। तो इसीलिए मैंने ये बोला कि इट इज नॉट ओनली एनसीबी, इट इज the first CBI, then CBI forwarded the information to the NCB that there is a drug nexus here, drug related things here. You should have investigated this thing, and then NCB raids the place. Okay, yeah. So सबको याद दिला दे कि वाटरस्टोन रिजॉर्ट वहां पर सुशांत सिंह राजपूत काफी टाइम तक उनको लाइक रिया चक्रवर्ती की फैमिली शायद ले गई थी कि ही इज नॉट फीलिंग वेल, तो वहां पर ही कुड रिकवर और फॉर टू रिक्यूपरेट। It is not the right thing. It is not the right thing. If you feel unwell, then you should take someone with the permission of the family. You should Yes. take someone into the hospital. ठीक है ना? You should have hospitalized him. ठीक है ना? Why you choose a resort? Yes. बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि इट वाज अ वे टू आइसोलेट हिम फ्रॉम हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो वहां पर मतलब exactly that's true. Yeah. Then we all go ahead, sorry. नहीं, बोलिए, आप बोलिए। Yeah, so I'm referring to आपका November 20 का tweet where you said Mr. Pithani, do you now remember, और आपने वो दो medicines का भी नाम लिया है, and you said self-made prescription by Dr. Indranil Chakravarti, and you say from Vidya Chemist. So yes, is this I think this information is also in the hand of CBI। ठीक है, और मेरा जो टीम है वो भी वो ये ऑन ग्राउंड टीम जो है वो ये जो फार्मास्यूटिकल हाउस है उनको निकाला है कहाँ से ये मेडिसिन खरीदते थे। आपको मालूम होगा कि रिपब्लिक ने जब अर्नब सर ने जब उन लोगों को ये क्या है सिद्धार्थ पठानी उसका जो इंटरव्यू ले रहा था उसमें वो मेंशन किया था कि आई यूज्ड टू गिव हिम 2 tablets a day in a day।
ठीक है, लेकिन वो टैबलेट का नाम नहीं लिया था, ठीक है ना। और वो टैबलेट कौन प्रिस्क्राइब किया है, कौन ले आ रहा था, ठीक है, वो क्लियर से जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो देन वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग द थिंग के असली में क्या मेडिसिन उसको दे चुका गया है कि उसको कि डॉक्टर लोग भी बोले, बॉलीवुड भी बोले कि he was a bipolar, he was a mental patient, or he was a depressed man। ये सब उनके नॉलेज के बाहर थे, ठीक है। और द सेल्फ मेड प्रिस्क्रिप्शन मीन्स यू कैन डू एवरीथिंग इन इंडिया। आई एम नॉट इंसल्टिंग द कंट्री, बट यू कैन डू एवरीथिंग इन इंडिया इफ यू ब्राइब एनीवन, ठीक है। आप नकली प्रिस्क्रिप्शन भी बना सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये सब हुआ है। और सुशांत को बोला गया है कि बहुत सारे ये एविडेंसेस भी हमारे पास है, और ये रिपब्लिक ने बोल चुका है, इसीलिए हम लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है, कि उसको भूत वगैरह, ये सब गोस्ट वगैरह, ब्लैक मैजिक वगैरह, घर वगैरह, इसको डर दिखाए, डरा चुका है वो लोग। उसके बाद दूसरे घर पे शिफ्ट किया है, तो इसीलिए उसका एक बहम पैदा किया उनके अंदर कि सुशांत जी के अंदर कि वो फील करे कि असली में मैं सीखूं। और इसीलिए वो मेडिसिन भी वो ले रहा था, क्या ले रहा था उनको भी शायद मालूम नहीं था, ठीक है ना। तो या आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मिस्टर पिटानी का वो इंटरव्यू तो सबको याद ही होगा, जो वो रिपब्लिक पर आकर के कह रहे थे कि रिया उनका ध्यान रखती थी और मैं तो सिर्फ वही दवाई देता था जो उसने मुझे दिया था, और मुझे नहीं पता। अभी कहा है वो चैनल जो रिया का इंटरव्यू लिया था, और रिया ने वहाँ पे बोला था कि मैं ड्रग रिलेटेड नहीं हूँ, मैं ड्रग नहीं लेता हूँ। इसके बाद भी 28 days she was in the jail, and the ED thing, ED seized her phone and cloned her deleted messages, and then they found out the thing, yeah, drug related, and then it is forwarded to NCB, and then NCB got proof, the sufficient proof to arrest her, यस, ठीक है ना। आई एग्री। या तो वो लोग का ही है, कहाँ है अभी वो लोग? या उन लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि मतलब कभी तो हमें भी समझ में आना चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट जो उन्होंने आके दिया वो सच है और क्या झूठ है। यस, वो कहाँ है अभी? वो अभी क्यों आके नहीं बोलता है कि आई एम सॉरी, वी आर सॉरी, वी shouldn't have taken our interview। एंड श्योर। कोई भी एक ही उसका इंटरव्यू बयान, ठीक है, द कन्फेशन, वो एक्यूज था एफआईआर में, नंबर 1 एक्यूज थी वो। तो उसका 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 कोई कन्फेशन कोई न्यूज चैनल नहीं ले सकती है। इट इज टोटली इलीगल। या जो ले जो सकता हुआ, है वो पुलिस, हाँ, जो ले सकता है वो पुलिस। और ये पीआर स्टंट था, ठीक है ना। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि पीआर यहाँ पे तीन टाइप का पीआर है सोशल मीडिया पे, मुझे बोलने दो, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक है कि रिया के जो सपोर्ट करते हैं, बॉलीवुड को सपोर्ट करते हैं, ये एक पीआर गैंग है। दूसरा पीआर गैंग है कि पॉलिटिशियंस, ठीक है, व्हाट आई मीन, पॉलिटिशियंस का भी एक ग्रुप है। तीसरा ग्रुप है जो लोग असली में जस्टिस चाहते हैं, ठीक है। एंड दे आर गेटिंग, जो लोग असली में जस्टिस चाहते हैं, दे आर गेटिंग कंफ्यूज्ड बाय दोस टू ग्रुप्स। आते हैं, आके पॉजिटिव कमेंट करते हैं, ठीक है, आके पॉजिटिव कमेंट करते हैं, उसके बाद वहाँ पे जाके स्टार्ट कर देते हैं कि खिलाफ बोलने स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत कुछ फेक एविडेंसेस पब्लिश कर देते हैं ट्वीट पे कि ये देखो सुशांत दिया था, सुशांत का फैमिली वो था, ठीक है ना। देखो, एक बंदा जो लॉयर है, हम लोग ह्यूमन राइट्स भी हम लोग मानते हैं, ठीक है। मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों हम लोगों को मेडिफाई कर चुके हैं वो लोग, वो मैं आपको बोलते हूँ। देखो, वो जो लॉयर है, उसने सुशांत के फैमिली को ह्यूमिलेट किया, ठीक है। हम लोग ऑफिशियली कंडेम किया उसको, और मेरा पिन ट्वीट भी अभी वही है, ठीक है। आर यू लिसनिंग टू मी? यस, वी आर लिसनिंग। यस, मेरा पिन ट्वीट भी वही है कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि डोंट डू दिस, थिंक अबाउट not once, think about thrice about the old father who has lost only son, the brighter future ahead of Sushant
उसका फ्यूचर बहुत अच्छा था सब में, ठीक है। उस एक लौता बेटा को, मेरा भी एक बेटा है, मैं भी एक लौता बेटा का बाप हूँ, ठीक है। तो मुझे मालूम पड़ता है ना कि मेरा बेटे को अगर एक चिट्ठी भी काट लेता है तो कैसा लगता है एक बाप को, और एक 74 इयर्स ओल्ड फादर, उनको कैसा लग रहा है। हम लोग ये मुहिम इतना जल्दी सब कुछ एक्सपोज कर रहे हैं, इतना जल्दी सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो एज है उनका भी ध्यान रख रहे हैं हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके, ठीक है, उनको न्याय मिले। वो ये उनको पता चल जाने के बाद अगर उनको अगर एज पर्सन के साथ क्या होते हैं हम लोग सब जानते हैं, ठीक है ना। 74 years एवरेज लाइफ हैज बीन पास्ट अवे। तो उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि उनको पता चले कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ और जस्टिस मिले। यस, एंड आई एग्री। आपका पिंड ट्वीट भी यही है कि प्लीज आपकी सबसे यू मेड अ रिक्वेस्ट कि फैमिली को कोई हरास ना करे, फैमिली से कोई डोंट ट्राई टू मलाइन द फैमिली, और प्लीज सपोर्ट देम, क्योंकि हम लोग कोई भी unless you've gone through such pain you cannot imagine what they are going through. लेकिन देखो अभी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो एडवोकेट के बारे में जिसके कमेंट के बाद ये ट्वीट मुझे करना पड़ा, और ऑफिशियल कंडेम भी हम लोगों ने किया, ठीक है। ऑफिशियली भी हम लोगों ने लेटर पे कंडेम किया। अगर आप मेरे पेज पे जाओगे वहाँ पे आप देख सकते हो। तो उस पे भी अटैक हुआ है, ठीक है ना। तो एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ठीक है, हम लोगों को अगर यू आर कन्विक्टेड फॉर अ मर्डर केस, you are convicted criminal for a murder case, ये सब आपके साथ होना नहीं चाहिए, अटैक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने उसको भी मैंने ये बोला कि जो हुआ उसके साथ ये गलत हुआ, हम लोग कंडेम करते हैं एज ए इंटरनेशनल मीडिया, हम लोग कंडेम करते हैं। इसका मतलब नहीं है कि हम लोग किसी और से दूर चला जा रहे हैं, ठीक है, जस्टिस से दूर चला जा रहे हैं, किसी गलत आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर रिया भी, अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, रिया शोभिक, उसके साथ भी जेल के अंदर कन्विक्टेड क्रिमिनल से कुछ हो जाता है, ह्यूमन राइट्स वॉच क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, कंडेम करेगा। दैट्स हाउ वी डिड, कि ये होना नहीं चाहिए था। वो बंदा गलत हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये हो नहीं चाहिए था। Yeah, you're absolutely right कि we do not support any kind of violence. Justice doesn't mean कि किसी के खिलाफ तुम जाकर के violence कर दो, and in every case we want justice through due process. So we don't want anybody to get hurt in this fight for justice. हम लोग क्या आकर के सोशल मीडिया पर बोलते हैं, क्या डिमांड करते हैं, we have to be careful about that. Exactly. So again, let's talk about the NCA that stepped into probe about the Hungary connection. ये देखो, ये जो मामला है, जिस बंदे को ईडी को जो इन्फॉर्मेशन मिला है, ठीक है, ईडी को जो इन्फॉर्मेशन मिला है, उस इन्फॉर्मेशन वो इन्वेस्टिगेट करते करते उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला है कि एक प्रोडक्शन हाउस ने पेमेंट किया था के अकाउंट पे, और वो कहीं और चला गया, तो ये अभी इंटरनेशनल केस है, ठीक है ना। जब ईडी ने अप्रूवल लेके उनको फॉरवर्ड किया, एक इंटरनेशनल केस है, एंड एनसीए इज द बेस्ट टीम एंड इंटरपोल इज द बेस्ट टीम फॉर डूइंग दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और ये बहुत बड़ा पेमेंट हुआ है, ये थोड़ा पेमेंट 17,000 भी नहीं है, 17 लाख भी नहीं है, ये 17 करोड़ है। If you convert it to a dollar USD, it is a huge amount, ठीक है। और ये किस लिए यूज हुआ है, क्योंकि जिस बंदे के खिलाफ ईडी ने रिपोर्ट दिया, उस बंदे ने स्टेटमेंट दिया और प्रूफ भी किया कि ये हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया। तो देयर इज समथिंग they should look into it, so it could be a the drug nexus thing, and already NCA has found the link to Cambodia. I think you heard about the Cambodia thing, who used to go to Cambodia regularly. Okay, let's leave it to that. लोगों को guess करने दीजिए. Yes. So you mentioned also where and on whose behest
did they parachute on the crime scene? So you're talking about. I would like you, if you want to comment on that. You also released a small audio clip about that. So do you want to talk about that? Which tweet you are talking about? Which audio clip? Where you say, I think it was about Sandeep Singh. Yes. हाँ, वो ऑडियो क्लिप जो हमने रिलीज किया है, ठीक है, क्योंकि मेरा टीम दुबई में भी है, ठीक है ना। संदीप दुबई में था फ्यू वीक्स अगो, ठीक है, तीन हफ्ते के लिए, तो उसके ऊपर भी हम लोगों का नजर है, ठीक है। डिस्क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, कोई भी रोक नहीं सकता है किसी को, ठीक है ना। और मेरा ये क्वेश्चन भी था एजेंसीज को और इंडियन गवर्नमेंट को, ये क्वेश्चन था कि वो शायद एक्यूज नहीं है, लेकिन सीबीआई उसको समन किया है, पूछताछ किया है, तो विदाउट एनी परमिशन वो कैसे बाहर जा सकता है, ठीक है ना। और दुबई जाके वो क्या करता है, क्या कर रहा है, ठीक है ना, वो भी हम लोग लिख दिया है, हम लोग ऑलरेडी पब्लिश कर दिया, उसका पार्टनर कौन है दुबई में क्या करता है, ठीक है ना। और उसके बाद देखो, उसके बाद ही हम लोग जब ये सब हमारे गवर्नमेंट को हम लोग पब्लिश किया, उसके बाद 18 करोड़ का ड्रग शायद, तो थोड़े दिन पहले तुम लोग अगर न्यूज देखे हो तो इंडिया को दुबई से बैक किया है कि ये तुम्हारे साथ रिलेवेंट है, ठीक है, तो ये हम लोग हैंड ओवर करते हैं। It is under your custody, not our custody. We have recovered this thing. Am I right or wrong? Have you heard the news? Yes. So yes. Go ahead. बोलो, पूछिए। So you also say like justice delayed, finally beginning to get explained. Yes. So why? मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अगर मैं खुद चोर हूँ, ठीक है, और उस चोरी के केस पे जाके मैं खुद कन्फेस, मैं विटनेस बन के जाता हूँ, ठीक है, और मैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता हूँ कि मैं ये देखा, मैं वो देखा, ठीक है, कहाँ से देखा, किधर से देखा, सीबीआई तो प्रोसिक्यूशन किया है ना, तो ये इन्वेस्टिगेशन को जो है ना, ये इन्वेस्टिगेशन के भटकने के लिए कि डाइवर्ट करने की कोशिश है, ठीक है ना। कि सीबीआई के पास जो भी जो लोग जा रहे हैं, देखो विवेकानंद जी, ठीक है, उन्होंने क्या है, कुछ नहीं बोला, एक बार भी उन्होंने नहीं बोला कि मैं सीबीआई को ये बोल के आया हूँ, वो बोल के आया हूँ, ठीक है ना। सीबीआई के पास नीतीश राणे जी ने चिट्ठी लिखे है, ठीक है, दे आर द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द मुंबई, एंड नारायण राणे जी हु इज द स्पोकपर्सन फ्रॉम द पीएम, एंड बहुत लोग ये बोल रहे थे कि बहुत लोग ये बोल रहे थे मन की बात क्यों पीएम ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, पीएम ने क्यों नहीं बोला। ये कोई किसी इंडिविजुअल केस पे पीएम, किसी की कंट्री के पीएम बोल नहीं सकता है, ठीक है। ये उनके अंदर नहीं पड़ते, उनका स्पोक पर्सन बोलता है। और अगले दिन ही नारायण राणे जी ने, ठीक है, बोल दिया है कि हम लोगों के पास एविडेंस है एंड वी आर लुकिंग इनटू इट, हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस है, ये वहाँ पे एक मिनिस्टर भी जेल पे जा सकता है, ठीक है ना। तो उसके बाद अमित शाह जी ने भी बोला है, पास किया है सीबीआई को कि इन्वेस्टिगेशन को जल्दी से खत्म करो। और इन्वेस्टिगेशन, कोई भी इन्वेस्टिगेशन it takes time. If it is about some big fishes, then it takes time. For catching big fishes, you have to create a strong big net. So that is the CBI is creating right now. Okay. So for everyone watching, I would like to tell you once again that Mr. Fahad has a Twitter handle at CEO Nasif, and you can follow him at Twitter to get all these updates because he posts everything there. So I also saw that on November 30th you posted your like professional license. Why did you decide to do that? ये देखो, हम लोग जब ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग था, जो लास्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में तुम बात कर रहे थे, उसके बाद जिसके बारे में हम लोग बोल रहे थे कि मोल्स है, सबके अंदर ही टीम के अंदर मोल्स होते हैं, ठीक है ना। जो मोल्स को एक्सपोज करना जरूरी है, लोगों को जो असली में जस्टिस चाहते हैं, ठीक है, उन लोगों को
जानना जरूरी है कि कौन मोल है, कौन कौन खिलाफ है, कौन सपोर्ट कर रहा है, रियली सपोर्ट कर रहा है, कौन खिलाफ है। उसके बाद एक वीडियो 17 मिनट वीडियो बनाया गया, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है। 17 मिनट वीडियो बनाया गया टू मैनिफाइंग अस, ठीक है, टू सेइंग अस कि हम लोग फेक न्यूज है, हमारा कोई प्रेजेंस नहीं है, हम लोग फेक न्यूज फैल रहे हैं। 17 मिनट वीडियो बना गया है। सेम देखो, हम लोग कंपेयर नहीं कर रहे, रिपब्लिक के ऊपर जो अटैक आ रहे थे, ठीक है ना, अभी एक्सपोज के बाद हम लोगों के ऊपर भी सेम अटैक आ रहे हैं, ठीक है, ये नेचुरल है। तो एक्सपोज चोर को एक्सपोज लगेगा मेलिफाइंग, ठीक है, टू मेलिफाई दैम, एंड जो विक्टिम है उसको लगेगा कि ये एक्सपोज है। और वो लोग जब ये वीडियो वगैरह बनाते हैं और चैलेंज करते हैं कि देख लूंगा, बोल लूंगा, ठीक है, और जब मैं उनको ऑफिशियली बोलता हूँ, ठीक है, कि आओ सामने आओ, मेरे गवर्नमेंट के सामने आओ, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आओ, मेरा गवर्नमेंट अथॉरिटी बैठेगा मेरे साथ और तुम भी वहाँ पे बैठ के प्रूव करो कि मैं गलत हूँ, और मेरा गवर्नमेंट भी प्रूव करेगा कि मैं गलत हूँ। देखो, ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक इशू है, मैं बोल रहा हूँ। इंडिया से अगर तुम लोग एक कंट्री को अटैक करते हो, जो इंटरनेशनल मीडिया हाउस है, ठीक है, अटैक करते हो, और ये अगर उस गवर्नमेंट को पता चलता है, ठीक है, ये डिप्लोमेटिक इशू हो जाएगा। ये जो लोग इंडियन जो लोग यूएई में रहते हैं, उन लोगों के लिए भी तकलीफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के अटैक नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी न्यूज चैनल दूसरा न्यूज चैनल पे अटैक नहीं करना चाहिए। कोई भी पब्लिक एक के बाद सुन के यूट्यूब पे आके वीडियो बना के और दूसरे का वीडियो डाल देना विदाउट इट इज also against the YouTube piracy act rules, कि तुमने भी डाला था और डिलीट कर दिया, ठीक है, तुमने मेरा नाम लेके डाला और दूसरे कोई ने डाला उस ऑडियो को, ठीक है, वो क्रेडिट दिया है तुमको, ठीक है ना। जो यूट्यूब के नजर से ये क्राइम है, ये पायरेसी है, ठीक है ना। मैं नाम ले सकता हूँ, वो चैनल का नाम है फोगट प्रिंस शायद, ठीक है। तुम अभी भी वहाँ पे जाओगे तो देखोगे कि तुम्हारा एक क्रेडिट दिया हुआ है। 18 hours after 18 hours you took my name and also used my the AWN वाला जो लोगो था वो यूज करके तुमने पब्लिश किया और उसने क्रेडिट कर दिया तुमको, ठीक है। हम लोग क्रेडिट नहीं मांग रहे, हम लोग बोलते हैं कि गलत चीज मत करो, ठीक है ना। हम लोग जो चाहते हैं ऐसे करो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फुलफिल करके करो, ठीक है ना। Okay, so yeah, I would like to mention that कि अगर आप किसी का भी कोई भी रिसर्च या उनके इन्वेस्टिगेटिव फैक्ट्स यूज कर रहे हैं तो प्लीज we must give credit because it takes a lot of effort to collect those and research those facts या कुछ वो कुछ भी हो। हम लोग क्रेडिट नहीं मांग रहे, बट ये करते हुए क्या होता है, ये बहुत पूरे दुनिया में फैल जाता है, ठीक है ना, बहुत दुनिया में फैल जाता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे थ्रेट मिल रहा है, ये करना नहीं चाहिए था। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे इनबॉक्स पे, मुझे भी थ्रेट मिलता है। मैं दुबई में बैठ के दाऊद के बारे में मैं दुबई पे बैठ के दाऊद के बारे में लिख चुका हूँ, तुमको मालूम है, ठीक है ना। मेरे न्यूज पे दाऊद, बॉलीवुड, डार्क नेक्सस मैं लिख चुका हूँ उनके बारे में, तो खिलाफ बोल चुका हूँ। तो ये डेयर हम लोग कर सकते हैं। और जो ये सब बोलते हैं कि हम लोग सिर्फ शोषण के लिए आए हैं, यस, इन सोशल मीडिया वी आर इन सोशल मीडिया फॉर सुशांत सिंह राजपूत, दैट इज ट्रू। और मेरा अकाउंट बहुत पहले से था, ठीक है, लेकिन जो पेज ओपन हुआ है ट्विटर पे और यूट्यूब पे जो चैनल ओपन हुआ है वो 2 महीने पहले का है, दैट इज ट्रू। क्योंकि हम लोग इंडिया को टारगेट करके हम लोग चाहते थे कि लोगों को सच्चाई पता चले, एंड उसके लिए भी हम लोगों को गवर्नमेंट परमिशन लगता है। यूएई में, दुबई में तुम ऐसे ही इतना इजीली सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकती हो। ओके, सो अगर आप थोड़ा सा बात करना चाहते हो कि why
if you have some insight in why Bollywood was trying so hard to push the suicide narrative. ये इसीलिए है कि उन लोगों को पता था कि सुशांत अगर सुशांत का डेथ का असलियत पता चल जाएगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव टीम को, ठीक है, तो ड्रग नेक्सस बाहर आ जाएगा, और ड्रग नेक्सस बाहर आ जाने मतलब बॉलीवुड को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा बॉलीवुड का, ठीक है ना। इसीलिए वो लोग कोई कमेंट नहीं किया। ये सब 400 करोड़ 500 करोड़ रुपया खर्च करके वो लोग फिल्म बनाते हैं। ये पैसा कहाँ से आते हैं? ये पैसा कहाँ से आते हैं? वो भी इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। वो लोग पैसा कहाँ से कमाते हैं? अभी भी कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे फिल्म रिलीज हो रहा है। वो पैसा कहाँ से मिल रहा है? क्योंकि नया कोई फिल्म रिलीज नहीं हुआ, और कोई फिल्म इतना के फेम भी नहीं किया, कि फेम भी नहीं पाया, कि कि बहुत सारे लोग देख चुके हैं हॉल में जाके, और पैसा मिल चुका है, द रिकवरी हो चुका है पैसा, ऐसा भी नहीं है। तो फिर भी वो लोग अभी भी फिल्म बना रहा है, दुबई आके बना रहा है, बहुत सारे जगह जाके बना रहा है, शूटिंग कर रहा है। वो पैसा कहाँ से मिल रहा है उन लोगों को? जहाँ पे since last 7 months वहाँ पे बहुत लोग है कि अनएम्प्लॉयमेंट में सफर कर रहे हैं, पैसा नहीं है उन लोगों के पास, बहुत लोग जॉब खो चुके हैं। बहुत से बॉलीवुड को कहाँ से पैसा मिल रहा है कि ये फिल्म करे, नया फिल्म बनाए, ठीक है ना, और नेटफ्लिक्स पे डाले, और बहुत सारे साइट्स पे डाले, सीरीज बनाए। ये सब कहाँ से मिल रहा है? ये भी इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। Sure. So, Mr. Fahad, we have a guest. She wants to ask some question. You can choose to answer or not answer, but let's just give a hi, Tanya. You can unmute your mic. Hi, lovely. Hi, Tanya. Go ahead. Could you please introduce me to her? I don't Yeah, I have just been following this movement, from the beginning, and I wish that we continue to talk about the case. There are various angles to the case, obviously. Everybody has their own opinions, and but of course, since this case is quite complicated, we cannot expect that everybody will be on the same page, and that is okay. Yes. But at the same time, I feel that whenever we are trying to bring down a system, or we are trying to, we are questioning the system, we also have to keep in mind that you can only reach the king through the pawns. Okay. So whoever is closest to the ground, they have to be first brought to book. And then if there are some speculations regarding there are other people involved, then one can, reach there. So I don't think we should fight about these issues. I think everybody, if first of all, we have to establish it was a crime, which we kind of feel, all the SSR warriors feel it was a crime. And once we establish that, we have to get whoever was nearest to the ground, and then we can. So all of us want justice. We just have our own personal opinions or thoughts about it. So I feel we should just stay together, and even if we have different opinions, eventually we want all criminals, if there were whoever was involved, we need them to be brought to book, basically. See, we are not, you can be an simple individual, but we are a media channel and media portal, international media portal. If you go to our channel, you will see हम लोग जो करते हैं, what we ever do, it is based on the fact and the evidence. Of course. ठीक है. And बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे थ्रेड मिल जाता है, मुझे ये मिल जाता है, आप लोग क्यों एक्सपोज करते हो, ठीक है? Sorry, actually, I haven't been following the AWN news. Yes. I just came to just. Yes, if you go to our news portal, if you go to our Twitter, if you go to my tweets and my Twitter page, you will find the newses, you will find everything. So देखिए, और मैं लवली जी को भी एक रिप्लाई देना चाहता था कि वो लोग उस ऑडियो के बाद वो लोग बोल रहे थे कि मुझे थ्रेड आ रहा है, वो आ रहा है, ये किसी के परमिशन के बिना कैसे हो सकता है? अर्नब जी ने भी तो बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन किया है ना,
स्टिंग ऑपरेशन किया है ना, बहुत सारे लोगों को एक्सपोज किया है ना, सुधीर गुप्ता जी का रिकॉर्डिंग एक्सपोज किया है, तो उन्होंने वो रिकॉर्डिंग तो सीबीआई को नहीं हैंड ओवर किया, उन्होंने एक्सपोज किया है, ठीक है ना। तो सुधीर गुप्ता का भी लाइफ, वर्क लाइफ, करियर वो भी डेंजर में आ चुका है। if they are right, those who am I talking about, if they are right, exposing is a wrong thing, it is not a wrong thing. Yeah. To expose some people is the right thing to provide the right information to agencies, एंड ये अगर ये रिलेंटलेस इन्वेस्टिगेशन नहीं चलता, रिपब्लिक चैनल नहीं चलाता, सीबीआई भी नहीं आता, ठीक है, इस इन्वेस्टिगेशन पे सीबीआई भी नहीं आता, ये सोशल मीडिया पे उन लोगों ने अगर हैशटैग क्रिएट नहीं करता, ट्विटर पे हैशटैग क्रिएट नहीं करता, डिबेट नहीं चलाता, ठीक है, और बहुत सारे लोगों का पिटिशंस नहीं लेते, तो ये सीबीआई भी इस केस में नहीं आता। बहुत सारे करोड़ों लोगों का आवाज जो है रिपब्लिक ने पेश किया उनके चैनल के थ्रू, उसके बाद जाके गवर्नमेंट को लगा कि यस, पटना गवर्नमेंट को लगा, बिहार गवर्नमेंट को लगा कि यस वी शुड अभी इतना कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बिहार पटना पुलिस, मुंबई पुलिस, ये सब हो रहा है, तो वी शुड गिव द अप्रूवल फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद देखो जिस लड़की ने पोस्ट किया है उसका उनका गर्लफ्रेंड रेस्पेक्टेड सुजन सिंह राजपूत, जो हमारे साथ अभी नहीं है, उनका गर्लफ्रेंड एक ट्वीट किया था कि मैं सीबीआई मांग कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं चाहिए। जब सीबीआई आ चुका है, उसने इस केस को डिले करने के लिए उसने पिटीशन डाल दिया, ठीक है, कि वो मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन चाहता है, ये सीबीआई ये पटना के जुरिडिक्शन पे नहीं है, और पटना ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है, पटना से ये सब सीबीआई का मांग भी नहीं आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन सेंटर ने जनरल वो लोग अपॉइंट किया है, सेंटर ने बोला है कि नहीं, सेंटर ने भी अप्रूवल दे चुका है, उसके बाद भी ये केस 8-9 दिन बैकवर्ड गया इस पिटीशन के वजह से, इस अपील के वजह से। तो ये सब तो सीबीआई इज नॉट एन simple agency, ठीक है, they know how to dig out the thing from the sky and from the deep under the soil. They know how to investigate the case. और मैं एक बात बताना भी चाहता हूँ, ये देखो, ये जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, ठीक है, ये रास्ते में जो लोग जा रहा है, सीबीआई को प्रेशराइज कर रहा है कि बोलो, अभी बोलो। सीबीआई अगर 130 करोड़ लोग भी रास्ते में आ जाए ना, ठीक है ना, until they have the final report, ठीक है ना, they have the final report, investigation report, and they have the final culprits, they will not come out with any statement, never. So never one thing I want to just say that जैसे आपको ग्राउंड से you have to work upwards, ठीक है। अगर आपको सच में लगता है कि बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व है, जैसे आप कह रहे हैं सीबीआई काम कर रही है और बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो एफबीआई भी जैसे काम करती है, वो पहले ग्राउंड लेवल में जो सबसे एविडेंट है उनके थ्रू वो जाती है एंड देन दे वर्क देयर वे अप, ओके। सो माय पॉइंट इज आई फील दैट अभी 6 महीने हो गए हैं एंड काफ़ी कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है एंड केस एक्चुअली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे भी लड़ी जाती है। अगर let me just complete. So cases circumstantial evidence पे भी लड़ी जाती हैं जब those evidences are a lot, and in this case we know that there have been lot of circumstantial evidences, and therefore मुझे लगता है कि इस बेसिस पे भी उनको कुछ सुराग ऑब्वियसली मिल गए हैं अभी तक 6 महीने तक। तो पहले जो अरेस्ट होने चाहिए वो होने चाहिए, आई डोंट थिंक दे कैन वेट, दे हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू गेट एवरीवन एंड देन ओनली दे कैन प्रोसीड। आई डोंट थिंक दैट्स हाउ केसेस वर्क। केसेस में जो पहले एकदम एविडेंट नजर आ रहे हैं उनको पहले तो बिकॉज ये हम कोई धमाका नहीं चाहते हैं, हम जस्टिस चाहते हैं। तो चाहे वो एक सर्वेंट ही कुछ क्राइम किया हो या एक राजा क्राइम किया हो,
सबको सब बराबर हैं, हम सबको चाहते हैं कि देश whoever has done something bad he should be brought to book or whatever. So ये बोलना गलत है कि भाई जब तक हम सबको नहीं पकड़ लेंगे तभी हम केस कर सकते हैं. So I don't think CBI is thinking that way, and that is why I feel कि उनको कुछ तो एक्शन अभी बनता है, because 6 महीने तो हो गए हैं. मैं आपको बोलता हूँ, मैं अभी आपको बोलता रिप्लाई देता हूँ, ठीक है. फादर इज फ्रॉम ए बिग एजेंसी, द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मैं उनका नाम ले लूंगा, ठीक है. मैं जानता हूँ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कैसे काम करते हैं, ठीक है. There are so many big fishes, to catch the big fishes. I have already told this to Lovely, Miss Lovely, if you want to catch the big fishes, you need to a strong net, ठीक है ना. So that net to be created, and CBI is constructing that net. And अभी अगर इनिशियल स्टेज में आप किसी को पकड़ लेते हो, ठीक है, और सीबीआई का भी कोई भी केस सीबीआई कोर्ट पे वो लोग चाहते नहीं कि कोर्ट पे वो लोग डिफीट हो जाए, उनका जो एविडेंसेस है वो डिफीट हो जाए, और जो एक्यूज्ड है उनको बेल मिल जाए, ठीक है ना. तो इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद हम लोग अरेस्ट करेंगे, उसके बाद सजा भी हो जाएंगे, ठीक है ना. वो लोग एक लॉन्ग टर्म के लिए वो लोग जेल के अंदर होंगे, क्योंकि अभी मैं पकड़ लेता हूँ, मेरे पास बहुत सारे एविडेंसेस नहीं है, मैं फाइनल रिपोर्ट नहीं किया अभी तक, मैं पकड़ लेता हूँ उनको, और उसका लॉयर एंटीसिपेटरी बेल मांग लेगा या कोर्ट पे जाके बेल मांग लेगा, बेल मिल जाएगा. जैसे शोभी को बेल मिल गया, रिया को भी बेल मिल गया, देखो इतने सारे एविडेंसेस होने के बाद. लेकिन उनका तो ड्रग केस पे रिलेटेड था ना, बट आई एम श्योर CBI कैन हैव अदर एविडेंसेस फॉर, आई डोंट नो हु द क्रिमिनल्स आर, आई एम नॉट नेमिंग एनीबडी, but I'm saying Shriya and Shobik got a bail on the drug case क्योंकि they have to establish that they are actually distributor or whatever, so maybe they could not establish that so far, but this is a different thing we are talking about. This is the murder angle we are talking about. So yes, उनका वो जो bail उनको मिला है वो drug angle से मिला है, वो bail उनको drug angle से मिला है. It is a Tanya, I would like to interrupt. Yes, please. So yeah, so even Mr. Fahad said earlier, they want to make it like a watertight case. They don't just want to file a charge sheet based on circumstantial evidence जिससे कि आगे when court में case जाए वो accused छूट जाए. So they are trying to find enough proof so that this is what we know of right now, that they are trying to this is what the message comes, that the PMO office has told CBI to find and make it a watertight case, find enough proof and then file the charge sheet. That's so nice. We are hoping that we can wait, we can have patience, so that they do not file a case on like circumstantial evidence, that when it goes in the court, people can just but Lovely, this is something I just want to interject. When we are saying that we don't want to fight the case only based on circumstantial evidence, there have been cases which have been fought and won just based on circumstantial evidence as well. So, but here there are very big. मैं बोलता हूँ जब FIR लॉन्च होता है ना, तभी भी आपके पास पुलिस के पास एजेंसीज के पास राइट होते हैं, अथॉरिटी परमिशन होता है अरेस्ट करने के लिए. उन लोगों ने अरेस्ट नहीं किया, समन करके पूछताछ किया है, वो लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, कन्फेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना. उसके बाद जाके जब स्ट्रॉन्ग फाइल they make it, once they make a strong file, and then they will arrest them, ठीक है ना. let us hope for the best. Let's hope for the best. रिया बाहर नहीं जा सकता है, जो भी accused. I don't want to take any names because we don't know. CBI knows that, but I'm just saying whoever is part of this. But I can assure you, CBI is doing their great job, and the investigation is going on the right track. And जो आप लोग सोशल मीडिया में बोल रहे थे कि ये है वो सब सच होगा, वो सब सच सामने आएगा, ठीक है. हम लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा. Okay, sure. Thanks, Lovely. I'll have to drop now. Thank you. Thank you, Tanya. Thank you, Tanya, for joining. Okay. Thank you. Anandita ji is here, and she's a journalist from Bengal, Calcutta, and I think she has some questions. Yes. Yeah, actually, I would. Hello.
First time actually I am seeing you, and it's like good, lovely that you have bring someone whom we do not know actually. Yeah, he has been investigating and researching this case for a long time, and if you can follow him at CEO Nasif, that's his Twitter handle, and he's been posting a lot of things about the case on Twitter. So he's the But I was listening him actually, but he said that Arnav को जब morning 6 o'clock लेके जाया गया तो he knew that before itself, correct? That's why Yes, you yes. said, right? So Yes. if you knew that, then why didn't you try? Can you share the news? Can you share the news in screen share on screen share from my portal? Lovely. from your Twitter thing. Let me try. Let me see if I can do it. Go ahead, answer, Anandita. Go to my website. No. What I was trying to tell you, if you knew that before, why didn't you try to make that stop to Mumbai police not to happen with Arnab the same thing? देखिए, मैंने अर्नब जी को मैं बता चुका हूँ। मैं बहुत सारे गवर्नमेंट लोगों को, बीजेपी लोगों को मैं इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ। उनका जो लीगल एडिटोरियल टीम है, रिदीम को मैंने मैसेज दे दिया है। और अर्नब जी मुझे फोन किया था November 1st of November, the 2 days before he got arrested। उनको मैं सब कुछ बोल दिया था, एंड वो भी मैं प्रूव कर चुका हूँ। उनके साथ मेरा 15 मिनट का बात हुआ, कन्वर्सेशन हुआ, और उनको मैं सब कुछ। किसके साथ? अर्नब जी के साथ। अर्नब जी के साथ, यस। आई गॉट कनेक्टेड टू हिम। और मैं आपको इनबॉक्स भी शेयर कर सकता हूँ कि मैं राबी तिवारी जी को भी मैं ये मैसेज छोड़ा था कि ये मैसेज जल्दी से अर्नब जी को आप पास कीजिए। और बहुत सारे लोगों को मैंने भेजा था, इंडियन गवर्नमेंट को भी मैंने भेजा था कि ये सब होने वाला है। और जब अर्नब जी मुझे फोन तो मैं पहले एक चीज जानना चाहती हूँ, दैट लवली जी, आप कहाँ रहते हैं सर? Breaking up, Anindita, you're breaking up. I cannot hear you. Pardon? You're breaking up. Pardon? Sound breaking up. Your Sound. Yes. Your vocal is not clear. Mobile is not clear. Now it's clear. Vocal. Now it's clear. Yes. Now it's clear. Okay. मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप कहाँ पे रहते हैं सर? मैं यूएई में रहता हूँ, दुबई में। आप दुबई में रहते हैं, तो दुबई में रहते हुए ये सारी चीजें, हाँ, आपने बोला था कि संदीप वाज देयर, तो संदीप जो था वहीं पे दुबई में, उस टाइम का कुछ फोटोग्राफ्स है आपके पास? वो सब कुछ हम लोग एक्सपोज कर दिया। दुबई कौन है अरब के साथ, वो लोग मिल चुके हैं, बिजनेस करते हैं, संदीप कहाँ जाते हैं, वो सब कुछ हम लोग न्यूज पे एक्सपोज कर दिए। आप हमारे साइट पे, पोर्टल न्यूज साइट पे जाना चाहिए आपको। हाँ, तो मैं आज पहले दिन, दैट्स व्हाई आई सेड दैट मुझे मालूम नहीं है कि ये कहाँ से है, कैसे है। फर्स्ट टाइम, दैट्स व्हाई आई सेड दैट फर्स्ट टाइम इज थैंक्स टू लवली एक्चुअली, कि उन्होंने आपको ऐसे बुलाया तो हम लोगों को जानने का मौका मिला। तो मैं यही चीज पूछना चाहता। हाँ, बोलिए। We are lucky that he is a part of international media, and he's a relentless warrior, and he is in this movement with us. तो आप मतलब whatever research or investigation इन्होंने किया है, he chooses to share with us. He says that he is also submitting it to the CBI, to the authorities. तो हम लोग उनके ट्विटर हैंडल पे, उनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आई विल पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल आल्सो पोस्ट इट ऑन द फेसबुक पेज। थैंक यू अनंदिता दी फॉर ज्वाइनिंग। आई विल आस्क पारुल। नहीं, मैं एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ। ओके, गो अहेड। कि अगर इतना ज्यादा थिंग्स यू नो सर, देन थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना चाहिए और इंडिया के साथ सा टच में रहना चाहिए। कुछ ऑडियो क्लिप्स कुछ रिलीज हो गया था, कुछ तो भी ये लेके कुछ इंडिया में प्रॉब्लम हुआ। व्हाट इज दिस? आई वुड लाइक टू नो। मैंने ये बोल चुका, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप को। ये आप अगर
वीडियो देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा. मैं ये दूसरे बार ये रिपीट नहीं करना चाहता हूँ. Am I right or wrong, Lovely? Yes. Look, he says that whatever he does the research and investigation, if he feels that it's important, he will put it out for us, for the people. And again, we talked about this कि एक stand alone fact पर किसी को भी हमें judge नहीं करना चाहिए. Treat it like नहीं, one. lovely, I am not judging anybody. I am not judging anybody at all. What I am trying to say, if अगर किसी का कोई भी एक ऑडियो क्लिप रिलीज करने के बाद किसी के पास डेथ थ्रेट आता है तो that is not correct thing. That I would like to know from him. Mr. Fawad, I would like to know from Please, you. Mr. Fahad, it's okay. अभी मैं बोल रहा हूँ. नहीं, अभी मैं बोल रहा हूँ. मैं आंसर देता हूँ. ठीक है. जो लोग बोल रहे हैं कि लाइव थ्रेट आ रहा है, ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि मैं उनका कॉल डेटा रिकॉर्ड जो सीडीआर है, सीडीआर में पब्लिश कर दूं, ठीक है, मैं दिखा सकता हूँ कि उनके पास कोई थ्रेड नहीं आया है. I would like to interrupt. Okay. Mr. नहीं, Fahad, lovely. ये जो ओपन हो रहा है ना, this is. Go ahead, Parul, ask your question. Hi, Lovely ji. How are you? I'm I believe I missed a lot of stuff today, but मैं अभी एक ही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. मुझे बार बार एक ही न्यूज दिख रही है फेसबुक पे भी कि संदीप सिंह का अरेस्ट वारंट निकल चुका है. इज इट ट्रू? ये सब बोलना ठीक नहीं होगा. ठीक है. ये किसी का नाम लेना भी ठीक नहीं होगा. ठीक है. वो लोग चौकन्ने हो जाएंगे. ये सब बोलना ठीक नहीं होगा. ठीक है. But yes, some arrest going to be happen very soon. Okay. So according to Mr. Fahad, वो कह रहे हैं कि CBI is doing its job and they are trying to get enough evidence before they file a charge sheet or make any arrest, so that ऐसा ना हो कि आज arrest करें थोड़े से evidence पे और कल को वो accused छूट जाए. So he's just asking all of us to have patience. Do you have any other question, Parul? नहीं, हम तो वेट कर रहे हैं बस कब सीबीआई से कुछ खबर आएगी बाहर और हमें सुनने को मिलेगी. वेट करिए. आप लोग जो हम वेट कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक होगा नहीं कुछ, जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक हम करते रहेंगे. वेट करिए, प्रे करिए, गॉड को प्रे करिए, जस्टिस मिलेगा. हम लोग इस पे हैं. अभी अगर बहुत सारे चैनल बंद कर दिया है बोलना, लेकिन हम लोग इस पे हैं. जस्टिस जरूर मिलेगा. ठीक है. अगर मेरा जान भी चला जाए ना, मेरा टीम है, वो लोग भी ये सब करेंगे. Don't say that. We hope you're safe. मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मेरा और भी thousands people है जो इंडिया में इंडियंस है जो मेरे साथ काम कर रही है. ठीक है. वो इस मुहिम को स्टॉप नहीं करेंगे. ठीक है. ओके. हम सब कुछ बाहर निकल देंगे. ठीक है. जी सर. मुझे बहुत कुछ ज्यादा चीजें बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को मालूम है सीबीआई के पास क्या है, सीबीआई क्या कर रही है. सीबीआई इज डूइंग देयर ग्रेट जॉब and they are the way you want the justice, they are in the same track. देखो, ये मैं एग्जांपल देता हूँ. ठीक है. लवली जी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ. रिया ने एक एफआईआर फाइल किया था सुशांत जी के फैमिली के दोनों बहन के खिलाफ. याद है? जी सर. सीबीआई खुद कोर्ट पे जाके कंडेम किया है कि ये एफआईआर एक्सेप्टेबल नहीं है. या एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, you're right. Right, you are correct. Yes. क्योंकि सीबीआई मानती है कि रिया इज एक्यूज्ड. ठीक है. जी सर. इसलिए उन लोगों ने जाके इनोसेंट को सपोर्ट किया और एक्यूज्ड को डिनाई किया. ठीक है. तो ये मैं सिंपल से प्रूफ दे चुका हूँ कि सीबीआई इज इन द राइट ट्रैक, इज ऑन द राइट ट्रैक. दे आर डूइंग देयर इन्वेस्टिगेशन इन द राइट वे. थैंक यू सर. अरुण सिंह जी, आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं. या गो अहेड. हाय फवाद. यस बोलिए. हाय अरुण, हाउ आर यू डूइंग? हाँ, मेरे तो काफी क्वेश्चन के तो फाइन. मेरे काफी क्वेश्चन के तो आपने पहले ही आंसर दे दिए हैं. मैं आपकी रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ, काफी लाइव देख रहा हूँ मैं. बस मुझे आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछना है कि सब कुछ अच्छा चला था, ये सडनली क्या हुआ कि ये डॉक्टर सुधीर गुप्ता को कुछ लुटियंस वालों को कुछ अपना ये बताना पड़ा कि ये सुसाइड है, मर्डर नहीं है.
ऐसा क्या हुआ अचानक में कि उनको ये कुछ लोगों को बताना देखो पड़ा? ये जो मामला है, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, ये जो केस है, ये केस बहुत बड़ा है, ठीक है। और सुधीर गुप्ता जो बरोबर है। सुधीर गुप्ता जो है, उनका डूबियस माइंड रह चुका है बहुत सारे केस में पहले से भी, ठीक है। एंड वो इन्फ्लुएंसिव है, ठीक है। उनको इन्फ्लुएंस करना बहुत ज़्यादा इजी है, तो डराना भी इजी है, ठीक है। शायद डर के वजह से ही ये उन्होंने बोला है। लेकिन देखो सीबीआई ने उसके ऊपर वो लोग ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि नहीं, हम लोग एम्स के रिपोर्ट पे, जो इनडायरेक्ट मीनिंग है कि वी आर नॉट going to the thing with the what he said, what they say we are not taking this thing, investigation is going on and the we will continue the investigation. एम्स के रिपोर्ट पे कुछ आता जाता नहीं है, ठीक है ना। ओके, और मेरा क्वेश्चन और है कि मैं ओके, एक बात बोलना चाहता हूँ। जो दिशा सालियान का भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों ने एक्सेस किया है, सुशांत सिंह का भी तो देखा ही है, ठीक है। वो डॉक्टर लोग असली में है क्या, और पोस्टमार्टम हुआ था क्या सुशांत का, वो भी मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ था। है। हाँ, तो वो नहीं हुआ था, हम लोगों को मालूम है। तो जहाँ पे डेथ टाइम मेंशन नहीं है, the date of the death time, and also if you say the thing, मैंने बहुत सारे केसेस देखे, मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर चुका हूँ, मेरे टीम को मैं ट्रेन कर, तो मैं ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कभी भी नहीं देखा कि जहाँ पे बोल रहा है कि सुसाइड बाय हैंगिंग, only they are saying suicide by hanging. But if you go to the other postmortem report, they mention the suicide by hanging, but the homicide angle cannot be denied. ये लिखा होता है, वो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट पे लिखा नहीं था, ठीक है। तो सीबीआई के पास अगर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब पब्लिक हो जाता है थ्रू ए चैनल, ठीक है ना, जहाँ पे रात पे होता है, मजिस्ट्रेट के अप्रूवल के बिना रात पे हो जाता है, और डेट ऑफ टाइम ऑफ डेथ मेंशन नहीं होता है, ठीक है। ये सीबीआई के लिए काफी है कि केस पे क्या चल रहा है, कौन क्या किया है, सीबीआई के लिए काफी है। ये काफी ये ऐसी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होना शुरू होना चाहिए था, और मैं भी सीबीआई वही किया है। कूपर हॉस्पिटल वो लोग जब फर्स्ट राउंड इन्वेस्टिगेशन किया था, 4 टीम में डिवाइड हो गए थे, ठीक है। एक टीम गए थे कूपर हॉस्पिटल, जाके डीन के साथ पूछताछ करने गए थे, फिर डीन ने बोला कि अप्रूवल लेके आओ, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेके आओ। यहाँ पे अगर उस रात का अगर 14 जून का अगर सीसीटीवी फुटेज वो लोग शायद उन लोगों ने निकल लिया है अभी तक, ठीक है। ये सुशांत का जो मॉर्चरी है वो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं किया गया, वीडियो क्यों नहीं किया गया पोस्टमार्टम के टाइम, ये सब उन लोगों को पता चल चुका है, ठीक है। तो ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बड़े नेम्स है, ठीक है। तो बहुत बिग फिशेस को कैच करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नेट जरूरी होता है, ये स्ट्रॉन्ग नेट ही क्रिएट करने में भी टाइम लगता है, ठीक है ना। फवाद जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन कि ये कहीं ये केस कोई पॉलिटिकल टूल ना बन जाए किसी गवर्नमेंट के लिए, कि इन फ्यूचर कि इस मामले को दबा के रखो, इन फ्यूचर सामने वाले पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर क्रिएट किया जाए, कहीं ये तो नहीं बन जाएगा कभी ये? नहीं, मैं समझा नहीं आपके क्वेश्चन, फिर से पूछिए। जैसे कि मतलब ये गवर्नमेंट के पास कोई आदमी फंस गया इस केस में, तो इस मामले को दबा के रखो एज अ टूल, पॉलिटिकल टूल के उसको इस्तेमाल करेंगे इन फ्यूचर में। मैंने अब तक सीबीआई का साल का रिकॉर्ड निकाला है, ठीक है। सीबीआई बहुत सारे गवर्नमेंट, बहुत सारे मिनिस्टर को भी सीबीआई पकड़ चुके हैं अभी तक। आप लोग बैकग्राउंड पे जाओगे तो सीबीआई बहुत सारे बिग फिश को पकड़ चुके हैं, जो मिनिस्टर था उस समय उन लोगों को भी पकड़ चुके हैं, अरेस्ट कर चुके हैं, तो वही सर, पर आपने नाम आता है तो डेफिनेटली एक्शन लेंगे ना, सीबीआई डेफिनेटली एक्शन लेंगे। सीबीआई इज नॉट अ पार्ट ऑफ only Indian agency. They have the right to international
they can do international investigation also. They can go out. They can Okay, go out okay, and they okay. can do investigations. ठीक है ना? तो CBI को एक पावर दिया गया है. CBI can be directly reported. वो लोग direct report करेंगे तो सिर्फ PM को कर सकते हैं. ठीक है? किसी को अगर Okay. जवाब देना है तो PM को देंगे. Okay. Great. Okay, so Thank you. Mr. Fahad ये कह रहे हैं कि we have to keep our trust in CBI और थोड़ा patience तो लगता है लेकिन we must try to be patient क्योंकि Let's see. जैसा उन्होंने पहले भी कहा कि to make like a watertight case and it takes time to collect all the evidence. पर लवली जी ये अगर जैसे उनके कुक हो गए या जो भी है जो भी इनके जो पिठानी हो गए अगर 3rd डिग्री टॉर्चर भी किया जाए अगर जैसे आप पुलिस को हम देखते हैं इन केस हम देखते हैं क्योंकि बहुत सारे लूप होल है कि बहुत सारी चीजें हैं अगर पुलिस चाहे जो पुलिस कर सकती है पर वो एक परेड की तरह आप रोज उनको बुला रहे हो छोड़ रहे हो या आप किसी कातिल को पकड़ना चाहते हो या आप किसी तह तक जाना चाहते हो तो बात दूसरी है ये किसी को मालूम आपको नहीं है कहीं- ना कि वो लोग बाहर घूम रहे हैं लेकिन CBI के नजर में नहीं है. ये भी नहीं सब तो उनके ही they all are under फैमिली surveillance. मेंबर्स के यहाँ सब नौकरी लग गए हाँ सर्विलेंस पे है ठीक है ओके Okay. ठीक है Thank you. सर थैंक यू Thank you, Arun. Neil is joining us. Yes, Neil, do you have any question? Yes, a few. First up, good evening to everyone. Mr. Fahad, hi. I don't believe you know me. I have been frequently here on the sessions with Lovely Ji, and I've been associated in my individual capacity as a citizen of India with the SSR matter since the 7th of August. Initially, just to give you a brief background, Yes. मैं सुना जब खबर of the death, I had initially, like a lot of us, मुझे ये लगा कि ये suicide है, but as the news kept coming in and I kept following, उस point of time पे there was also the China issue plus एक UP में death case हो गया था. Maybe you may have heard about it, about the young girl Yes. who died वो थोड़ा motorcycle वाले incident का. So I was a little more involved with that in highlighting that on Facebook. So I have actually seen a bit, not a whole lot of your channel, but part of the news I have seen. Now I'll be honest here, sir, please don't mind, but I was initially skeptical. You would understand this with a lot of the other news that have been coming in. थोड़ा वो क्या बोलते हैं संदेह एक क्रिएट होता है क्योंकि आपका आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म AWN न्यूज़ ग्लोबल लाइक इट्स नॉट अ वेल नोन प्लेटफॉर्म एम आई करेक्ट Neil, it is an international global news channel. So just I would ask your question. Yeah. Yeah, my question, sir, is we have been asked by a lot of the people that I've seen on various platforms that we need to be patient. That's fair enough. Now, there have been cases which have been linked to possibly this SSR case, Yes. which have happened several years back. And maybe certain agencies involved now have also been involved in that. But nothing has come of it so far. Abhi trial stage pe shayad hai. But my only question here is, I'm not doubting any agency, but my question here would be, हमें जो कहा जा रहा है कि हम patience रखें, वो एक I think we deserve to know an approximate time that we need to be waiting till. Like it could be 5 years, it could be 10 years. I'm not saying no to that kind of a duration, but it cannot be unending. So can we possibly expect a time frame from anyone that may be in the know? अगर आप ये बता सकें. I can tell you in this month you will see the actions. You will see the tight actions from CBI. Okay. You Right. will That's see. all that I everyone have will presently. see. In case I have Yes. more, I will ask. Thank you. Thank you, Neil, for joining.
Thank you, Parul. Do you have any other question? Thank you so much, Parul, for joining. Okay, so Mr. Fahad, so हमने इतनी सारी बात की, लोग इतने इम्पेशेंट हो रहे हैं, अपनी अपनी तरह से सब सोशल मीडिया पर ऑन रोड प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस हैज बिकम अ वर्ल्ड वाइड मूवमेंट. डू यू एक्चुअली बिलीव दैट देयर आर पेड PR pretending to be SSR warriors trying to break the unity? यस यस यस. अभी 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 मैं आपको बोलूंगा तो आपको शायद ये अच्छा नहीं लगेगा. ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा जब हम लोग ये एविडेंस कलेक्ट किया है. बहुत सारे लोग हैं जो पहले आ चुके हैं केस में और जो लोग पहले से ही प्रोटेस्ट करने स्टार्ट किया. बिग फेसेस, दे आर बिग फेसेस एंड दे आर पैनलिस्ट ऑफ द चैनल ऑफ रिपब्लिक. तो वो लोग आए हैं और वो लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, वो लोग ही बहुत कुछ कर रहे हैं. और उन लोगों का अगर जो ग्रुप क्रिएट हुआ है, मैं बोल चुका था कि ट्विटर पे, टेलीग्राम पे और भी बहुत सारे साइट्स है, व्हाट्सएप, बहुत सारे ग्रुप है और बहुत सारे लोगों को प्रोटेस्ट के लिए पैसा आ रहा है. ठीक है, बाहर से. ठीक है, बाहर से, दुबई से भी पैसा गया है. दुबई से भी बहुत सारे इंडियंस पैसा भेजा है. तो ये सब ठीक नहीं है. ये क्यों ठीक नहीं है? पैसा मैं ले रहा हूँ, मैं 5 रुपया ले रहा हूँ, 2.5 रुपया मैं खर्च कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग मुझे पैसा भेज रहे हैं उन लोगों को मैं वो 2.5 रुपया का है उसका अकाउंटेबिलिटी मेरे पास नहीं है, मैं दे नहीं सकता हूँ. ठीक है ना? ये अच्छा नहीं है. बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हैं हमारे पास, बहुत सारे कंप्लेंट्स आए. जब हम लोग ये न्यूज टेलीकास्ट करने स्टार्ट किया, बहुत सारे कंप्लेंट्स आए, बहुत सारे लेटर्स आए, वो हम लोग पब्लिश किए और वो अकाउंट स्टेटमेंट भी दिए वो लोग हम लोगों को. वो US से, UK से है, वो लोग दुबई से भी है. बहुत सारे लोग हैं कि बहुत सारे लोगों को बोल के पेमेंट ले लिया गया है. ठीक है, ये अच्छा नहीं है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. अर्नब को अरेस्ट किया गया, विद इन 10 मिनट्स लाखों लोग रास्ते पे आ गए पूरे इंडिया में. कोई पेमेंट कलेक्ट करना पड़ा. I completely agree. अगर मैं पैसे के लिए मैं जस्टिस चाहता हूँ. ठीक है, so we are not the real justice seekers. Yes, I absolutely agree with you. ये जो पैसे मतलब if we are investing money और पैसे का लेन देन, it dilutes the movement, it dilutes the real passion. So let's not do that. Let's try to keep it as organic as possible. और अगर आप रोड पे आ रहे हैं अपना प्रोटेस्ट करने, कम मैं एक चप्पल पहन के, एक टी-शर्ट पहन के, एक ट्राउजर पहन के मैं रोड पे जा सकता हूँ. मैं ऐसा एक पेपर लेके वहाँ पे आई वांट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत ऐसे लेके मैं जा सकता हूँ. मुझे इसके लिए मास्क, मुझे इसके लिए सुशांत का बैनर, कुछ भी जरूरत नहीं है. Sure, ठीक है ना? इस चीजों के नाम पे मैं पैसा ले रहा हूँ और जब मैं अकाउंटेबिलिटी मांग रहा हूँ, जो रेसिपिएंट से सेंडर्स अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, उन लोगों को कोई हिसाब नहीं मिल रहा है. ठीक है ना? तो ये ठीक नहीं है. ये ठीक नहीं है. पैसा को जुड़ो मत. सुशांत के मामले में पैसा को जुड़ो मत. तो फिर एक ही हो गए हम लोग. बोले तो ये जो पैसा को जोड़ते हैं तो हम लोग वो पैसा वाले हो चुके हैं. ठीक है ना? तो बॉलीवुड जो कर रहा है पैसा के लिए. ठीक है ना? हम लोग बॉलीवुड का पार्टी बन गए. तो मिसगाइडेड मत हो. ठीक है ना? पैसा यूज मत करो. नाउ दैट यू ब्रॉट अप बॉलीवुड, तो मेरा एक ये सवाल है कि जैसे हर आए दिन हम किसी ना किसी को देखते हैं. कुछ दिन पहले विशाल ददलानी ने ट्वीट किया, कभी स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, ये लोग जो ट्वीट करते हैं, तो आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, तो इफ यू हैव एनी इनसाइट ऑन दिस, क्या वो अपने मन से ट्वीट करते हैं या फिर somebody asks them to tweet? ऐसी बातें. ये किसी का मन का बात भी हो सकता है और किसी से सुन के भी कर सकता है. ठीक है, किसी से सुन के भी कर सकते हैं, किसी से बायस्ड होके भी कर सकते हैं. ये हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि दे आर द जनरल पीपल दे आर Yes. तो हम लोग उनके बारे में ये नहीं बोल सकते. अगर हाँ बहुत बड़े मीडिया चैनल कुछ बोल दिया है, ठीक है ना, बहुत बड़े लोग, मिनिस्टर लोग या फिर बहुत बड़े नेता लोग कुछ बोल दिया है, तो वो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ इस पे हम लोगों को हाथ देना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कौन ये लीड कर रहा है. ठीक है ना? कोई मिस्टेक कर रहा है क्या,
कोई बोल रहा है क्या ये सब? Sure. The other thing, because you do investigative journalism, आपकी पूरी टीम है जो कि इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है. I would like to ask, talk about this, the thin line between bringing out facts and maligning someone. What I believe is कि आप as a news agency, आप facts आगे रखते हैं. It's people who malign the other people. आपने किसी के बारे में एक फैक्ट रखा और उसी के ऊपर अगर हम लोग पूरा कंक्लूजन ड्रॉ कर लें तो दैट वे वी malign people. So I would ask to everyone to look at those facts as standalone facts. What do you want to say? हम लोग जो भी फैक्ट्स रखते हैं, ठीक है, जो भी फैक्ट्स रखते हैं वो इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है वो जो लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो एजेंसीज है, जो लोग करते हैं, उनका अटेंशन के लिए हम लोग ये करते हैं, ठीक है. जो एक्सपोज होते हैं, जो स्टिंग ऑपरेशन रिपब्लिक ने भी चलाया, ये सब अटेंशन सीख करने के लिए कि मुंबई पुलिस का अटेंशन भी और सीबीआई का भी और सेंटर का भी, ठीक है ना. तो ये मतलब सही नहीं होगा कि हम लोग अगर किसी को अगर गलत बोल दिया, ठीक है, उनको हम लोग मालाइन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना. ये सही नहीं है. पब्लिक प्लेटफॉर्म में मालाइन करना ठीक नहीं है, ठीक है ना. किसी को हिट करके बोलना ठीक नहीं है. लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सब एक ही ग्रुप में थे, यूनाइटेड थे. वो लोग बहुत पहले से, मैं आने से पहले से उन लोगों के लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया. हमारा हम इन्वेस्टिगेशन पे तब था ही नहीं. तब भी से ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे एक दूसरे को के दोषी ठहराना, बुरा बोलना, गलत बोलना, ये सब चल रहा था. ये क्यों चलेगा? सुशांत के लिए क्यों चलेगा? मैं अगर सुशांत के लिए हूँ, मैं सुनूंगा, मैं चुप रहूंगा, ठीक है ना. मैं सुनूंगा, मैं खुद का ब्रेन यूज करूंगा, मैं चुप रहूंगा. मुझे इसको पब्लिसिटी के लिए या फिर लोगों के लिए किसी का मुझे एक ये मिल गया कि मैं उसे इंसल्ट करूंगा, एक चांस मिल गया और मैं इंसल्ट करते रहूंगा, ये ठीक नहीं है. मीडिया विल डू एक्सपोजेस, लेकिन उसके बाद अगर कोई और उन लोगों को तकलीफ देता है, ठीक है ना, ये बात सही नहीं है. ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आपने तो अपने फैक्ट्स रखे, मीडिया अपना काम करता है, न्यूज एजेंसी अपना काम करती है. अगर लोग इसके बाद किसी को तकलीफ देते हैं, किसी को ट्रोल करते हैं, किसी को मलाइन करते हैं, तो दिस इज ऑन अस, दिस इज ऑन पीपल एंड वी शुड नॉट डू दैट. आई होप सब लोग ये बात समझेंगे. If you are in the same field for justice, So in the end, do you have any message for everyone who is in this movement? क्योंकि शायद थोड़ा टाइम और लगेगा. We have to be patient, we have to be persistent. So what should we do to stay and not? मैं अभी जो बोलना चाहता हूँ, ठीक है, जो सोशल मीडिया में आप लोग, मैं पहले बोल चुका हूँ, सोशल मीडिया पे अगर ये आवाज नहीं उठता, ठीक है, तो ये केस मीडिया तक भी नहीं जाता, ठीक है, इंडियन मीडिया तक भी नहीं जाता, ठीक है ना. तो सोशल मीडिया we should give them the credit first. They are the one who first raised their voice. Sure. फैक्ट्स रखा है, उसके बाद चैनल को लगा है कि हाँ यहाँ पे शायद गलती है. उसके बाद वो चैनल इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया, स्टिंग ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया. उसके बाद बहुत फैक्ट्स आया है, ठीक है ना. आपस में लड़ाई मत करो. अगर सुशांत के कर रहे हो ट्विटर में, खुद का डीपी यूज कर रहे हो सुशांत के तस्वीर से, ठीक है, तो यूनाइटेड रहो, ठीक है. जो लोग सुशांत के तस्वीर यूज कर रहे हैं, सुशांत के लिए जस्टिस मांग रहे हो, ठीक है, वो लोग यूनाइटेड रहो. हाँ, ये बात सही है. पीआर टीम जो है वो लोग डेफिनेटली तुमको हिट करेंगे, वो रेस्पॉन्स नहीं करना चाहिए, ठीक है. उसको देख के आग बंद करके रहना चाहिए. देख लिया तो देख लिया, बोलेंगे, ठीक है, बोलेंगे. उन लोगों के खिलाफ हम लोगों को बोलना नहीं है. तुम लोग फिर से यूनाइटेड हो जाओ. जो भी हो, बड़े लोग जो है मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, वो लोग फिर से यूनाइटेड हो जाए, ठीक है, कि
यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा ही ना हो, ठीक है, किसी के खिलाफ कोई FIR ना हो, किसी के खिलाफ कोई नोटिस ना जाए, ठीक है ना, ये सब ना हो, ये नहीं है। यूनाइटेड हो जाओ, इन्वेस्टिगेशन को हेल्प करो, जो लोग इन्वेस्टिगेशन को ये फैक्ट्स वो लोग रख रहे हैं सामने, एविडेंस रख रहे हैं, उन लोगों को भी कोऑपरेट करो, ठीक है, और एक हो जाओ ना। और मैं देखो, मेरा हार्ट ट्वीट में मैं क्रेडिट देता हूँ, मैं हार्ट ट्वीट में मैं क्रेडिट देता हूँ एसरियंस को एंड रिपब्लिक चैनल को। मेरा तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं इस इन्वेस्टिगेशन पे आया हूँ बहुत सारे इंडियंस के रिक्वेस्ट के लिए। वो लोग रिक्वेस्ट किया है, वो लोग पिटीशन दिया है, मुझे सिग्नेचर करके दिया है, लाखों लोग रहता है यूएई में, ठीक है। और मेरा स्टाफ भी जो लोगों के साथ, मैं हिंदी कैसे जानता हूँ, 70% इंडियंस आर वर्किंग इन माय कंपनी, तो उनके साथ बात करते करते ही मुझे हिंदी आ गया, ठीक है ना। मुझे इंग्लिश बोलना था, लेकिन उन लोगों के साथ बात करते करते मुझे हिंदी आ गया। इतना लगाव है मेरे इंडियन लोगों से, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग डिवाइड मत करो, ठीक है। देखो, बहुत सारे कुछ किया है, पालघर केस हुआ है, केस को डाइवर्ट करने के लिए। एनसीबी का भी जो मामला है वो भी सुशांत को केस के डाइवर्ट करने के लिए हुआ है। एनसीबी को जो अरेस्ट, जो इन्वेस्टिगेशन जो भी हो रहा है, ये भी केस को डाइवर्ट करने के लिए हो रहा है, ठीक है। और जो कंगना जी के साथ जो हुआ था, ठीक है, 5 दिन तक सुशांत के न्यूज नहीं आया था, सिर्फ कंगना जी ही आया था, ठीक है ना, उनका जो ऑफिस है तोड़ने के बाद। और फिर अर्नब जी के साथ जो हुआ, 9 दिन, 10 दिन, 15 दिन, अभी तक ये मामला ही चल रहा है मीडिया पे, ठीक है ना। ये मामला ही चल रहा है, क्यों उसने अरेस्ट हुआ, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष लिया, क्यों दूसरे का खिलाफ गया, ठीक है ना। तो ये सब मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए कर रहा है, ठीक है, कि मीडिया ट्रायल बंद हो जाए। और इसीलिए बहुत पहले मैंने बोल चुका था कि ये होगा, मीडिया को स्टॉप कर देंगे वो लोग, ठीक है। ये PR भी हो सकता है, क्योंकि एक मीडिया चैनल बंद हो गया, बोलना बंद हो, और नेगेटिव भी बोलना स्टार्ट कर दिया है, जो पॉजिटिव बोल रहे थे, ठीक है, अर्नब जी के साथ साथ। आपको मालूम है मैं किस चैनल के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। वो लोग भी बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन किए थे, ठीक है, इंडियन चैनल ही है, इंग्लिश चैनल है, तो वो लोग फिर से यूटर्न ले लिया, ठीक है ना। तो ये सब होंगे, PR लोग कहेंगे। देखो, आप मेरे YouTube पे जाओ, मेरे YouTube पे कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, फिर भी मैं फैक्ट्स रखता हूँ। वो लोग मेलिफाइंग करते हैं मुझे कि मैं मोनेटाइजेशन के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, ये वो जो न्यूज़ है republicworld.com, वहाँ पे जाओ, हर न्यूज़ पे आपको 10-12 ऐड मिल जाएंगे। कोई भी वेबसाइट पे ऐड आ ही जाता है, मोनेटाइजेशन लगता है, क्योंकि SEO करना पड़ता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, आपको गूगल एडसेंस से मोनेटाइजेशन लेना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। ये एक प्रोसीजर है, ये पैसा कमाने के लिए नहीं है। हम लोग अभी भी हमारे चैनल पे कि मोनेटाइजेशन नहीं डाला है, हम लोग डाल सकते थे। हमारा देखो कि कितना हुआ है, हम लोग डाल सकते थे, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं, सुशांत के बारे में बोलते हैं और मुझे अटैक करते हैं, मेरे न्यूज चैनल को फेक बोलते हैं कि मोनेटाइजेशन के लिए करते हैं। उनका चैनल पे जाके देखो कितना मोनेटाइजेशन है, और सुशांत के नाम से ये लोग पैसा कमा रहा है दूसरे को अटैक करके। ये सही है ना, सही नहीं है ना? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब इस मूवमेंट में सब लोग जुड़े हुए हैं, तो देयर इज नो नीड टू अटैक ईच अदर एंड exactly if you are a real justice seekers, then do not fight and I truly believe कि अगर we are thankful that AWN Global News is with us in this movement, and whatever we use, what they have researched and investigated, we should give due credit to them. I would like to thank Mr. Fahad for joining this live and giving motivation to all the SSR warriors and giving us hope. So in the end, I would again like to say that all these, they will keep doing their research, they will keep doing their investigation. We as people should treat these as standalone facts and do not draw conclusion and malign people's image because of these.
most of the time we see what we want to believe rather than what is actually there. I request all of you not to make up your mind about people and keep an open mind. Let's stay united and fight for justice for Sushant Singh Rajput. Thank you, Mr. Fahad, for joining us, and we hope you Thank can you, join Mr. us again in future. Thank you so much. Thank you so much.